کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ بے شک ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، آپ بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا آپ کا سوال ہے دعا سے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا اور موبائل میں ریکارڈنگ موڈ آن کر کے جو آپ کے سوالات ہیں ان کی جو مفتی صاحب دعائیں بتائیں گے وہ دعائیں جو ہیں ریکارڈ کر لیجیے گا، اور اس کے بعد جیسے جیسے مفتی صاحب آپ کو بتائیں ویسے آپ دعائیں پڑھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، گھر میں برکت بھی رہے گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں خوشحالی رہے گی۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں، راجستھان کوٹا سے۔ شیخ ابرار صاحب جی سوال پوچھے اپنا۔ میرے دو سوال تھے کہ وہ یہ جیسے فجر کی نماز میں جب پڑھنے جاتے ہیں اپن جی، تو فجر کی نماز جب پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت اپنے کو پہلے گھر پہ آنا زیادہ افضل ہے یا تفریح کے لیے اس ٹائم گھومنے نکل جانا، ادھر کے ادھر ہی کہیں نکل جائے وہ زیادہ صحیح ہے؟ دونوں میں سے بہتر جو ہے وہ بتائیں۔ تو کیا میری تفریح میں بہت زیادہ مجھے پسند ہے گھومنا صبح صبح۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے، جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنا جو بھی آفس کا ہم جو بھی کام کرنے بیٹھتے ہیں دفتر کا، تو اس کے اندر جو بھی ہمارے کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتائیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کوٹا راجستھان سے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے، کیا سوال کیا جواب دیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ دیکھیے بھائی، آپ نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جانا افضل ہے یا سیر و تفریح کے لیے باہر چہل قدمی کے لیے جانا یہ بہتر ہے۔ شریعت کا یہ اصول یاد رکھیے کہ بہت سارے مباح کام ایسے ہیں جن کے متعلق سے واضح طور پہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اگر شریعت میں واضح طور پہ ہر چیز کو بتایا جاتا تو دائرہ محدود ہو جاتا، ہمیں پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے ہمیں ان چیزوں میں ہمارے اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ہم جو مناسب سمجھیں، چاہے تو گھر آنا چاہیں تو گھر آ جائیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں چہل قدمی کے لیے جانا چاہیں تو اس کے لیے جائیں۔ اس میں کوئی ایسی خاص رہنمائی نہیں کہ آپ کو گھر ہی آنا ہے، باہر نہیں جانا ہے، یا باہر ہی رہنا ہے، گھر کچھ دیر تک نہیں جا سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے۔ کئی مباح کام ایسے ہیں جس کے متعلق سے خاص کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اگر حکم موجود ہوتا تو دائرہ محدود ہو جاتا، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے، یہ اصول ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کا نام لے کر کے ہمیں ہر وقت، آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کے نام سے ہر کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ جو دعائیں بتائی گئی ہیں احادیث میں، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ موجود ہے، ہر موقع پر ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دکان شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد سے دکان شروع کریں، کاروبار شروع کریں۔ اگر اس میں برکت کے لیے آپ وظیفہ چاہتے ہیں تو دکان کھولنے کے بعد جیسے آپ دکان میں داخل ہوں گے 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ دن بھر خیر و برکت ہوگی اور اچھے انداز سے کاروبار چلے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ آپ 60 مرتبہ پڑھ لیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے، کام شروع کرنے سے پہلے۔
آپ اگر امپلائی ہے تو جاب شروع کرنے سے پہلے جیسے جائیں گے، اگر مناسب ہے، موقع ہے تو تھوڑا پہلے پہنچ کر یہ 60 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بنگلور سے بول رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، ہم بنگلور سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہم جو ہے نا جب استنجا سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم وضو بنانے کے بعد جو ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پیشاب جو ہے نا ایک آدھ بند وہ گر جاتا ہے، کیا ہم کیسے وہ نماز جو پڑھیں اس کے لیے اگر کچھ دعا ہے تو ان کے لیے بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنگلور سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی، یہ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ ہم استنجا کرنے جب جاتے ہیں تو جلد بازی میں وہاں سے نکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک آدھ قطرہ رک جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ بعد میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں تو وہ ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو جیسے محسوس ہو، آپ استنجا کر کے وضو آپ نے کیا، وضو کرنے کے بعد نماز آپ نے شروع کی، اب نماز کے دوران آپ کو محسوس ہوا پیشاب کا ایک آدھ قطرہ نکل چکا ہے، آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہو گیا، تو اب آپ کی نماز وہیں ٹوٹ گئی۔ وہیں سے آپ کو چاہے جماعت میں ہو، چاہے تنہا آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، کسی بھی صورت میں ہو، آپ وہیں سے نماز کو روک کر کے واپس چلے آئیں گے۔ آ کر استنجا کی مزید حاجت ہو تو استنجا کریں گے، اس کے بعد وضو کریں گے، پھر جا کر کے جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا اپنے، وہیں سے اس کو آگے مکمل کریں گے۔ تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ استنجا کے لیے جائیں تو اس کے بعد ایک آدھ بار اٹھ کے پھر بیٹھ لیں، اچھی طریقے سے زور لگائیں تاکہ جو قطرات بیچ میں رک گئے ہوں وہ نکل جائیں۔ یہ بعض حضرات کو سلسل بول کہتے ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے، یعنی قطرات کے نکلنے کی۔ یہ اگر بیماری ہے تو پھر اس کے مسائل، اس کی نوعیت الگ ہے۔ عام طور پہ جو ہوتا ہے یہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، احتیاط کر لیں کافی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ناگپور مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں نا، میرا ہوا ہی نہیں پورا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے سب کو ایک جہتی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ جی ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ بس ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ناگپور سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں بھائی، یہ آپ کے بڑا مبہم سا سوال ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک جیسا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ، ایک جیسا مطلب سوچ میں، فکر میں، عمل میں یا دینی لحاظ سے اچھے کاموں میں اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، یہ جو اختلاف ہے طبیعتوں میں، یہ فطرت کی طرف سے ہے۔ آپ کچھ اپنے انداز سے کرتے ہیں ایک ہی کام کو، دوسرا کوئی اپنے انداز سے کرتا ہے، تو یہی فطرت اور قدرت کی خوبصورتی ہے۔ قدرت نے ہر ایک کو الگ طبیعت، الگ سوچ عطا کی ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہر الگ ہے، ہر ایک کا چہرہ الگ ہے، آواز الگ ہے، انداز الگ ہے، یوں ہی سوچ فکر بھی الگ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اختلاف تو ہوگا، لیکن اس اختلاف کو کم سے کم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں دیگر جو منفی چیزیں ہیں، یعنی غلط سوچ کسی کے بارے میں، حسد، بغض وغیرہ، اس طرح کی چیزیں درمیان میں نہ آئیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ متحد ہونا، اتحاد ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی سوچ و فکر ختم کر دے، سب ایک ہی سوچ اور فکر میں ڈھل جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر اختلاف ہے، علمی اختلاف، فکری اختلاف ہے، اور اس کی کوئی بنیاد ہے، وہ شرعی لحاظ سے بھی اس کی گنجائش ہے، تو وہ اختلاف بالکل رکھ سکتا ہے۔ ان اختلافات کے ساتھ ہی اختلاف فکر کے ساتھ متحدہ عمل کی طرف کوشش کی جا سکتی ہے۔ یعنی
फिक्री तौर पे सब अलग अलग हों, जब काम की कोई बात आए सब मिलके एक साथ होकर काम में हाथ बटा सकते हैं, इसके लिए गुंजाइश है। और एक आखिरी बात यह है, हमें इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाया गया कि हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ सोचें। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, वो बंदों का परवरदिगार है। वो चाहता तो सारी कायनात मुसलमान हो जाती, लेकिन अल्लाह ने हर एक को आज़ादी दी है। फमन शाअ फलयुमिन फमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी चॉइस है। तो बहरे कैफ हम दुआ कर सकते हैं और अपनी हद तक मुस्बत कोशिश कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बरेली से बात कर रहा हूँ, यूपी से। जी सवाल पूछिए अपना। मौलाना साहब, हमने ख्वाब में जो है ना 2 दिन पहले ख्वाब में हमने देखा था ये सफेद खील नहीं होती, खील और गट्टे। जी हेलो, ये खील और गट्टे देखे थे और हमारे घर में जो है ना, हेलो जी जी आपका देखिए हमारे ख्वाब के घर में जो है मुतालिक ना- तो आप सवाल ना कीजिए, उसके अलावा कोई दुआ से मुतालिक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ख्वाबों की ताबीर बराह करम ना पूछें आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। कोई सवाल आपका उसके अलावा? हाँ, सवाल जो है ना कि हमारे घर में अब से करीब 2 साल पहले एक झाड़ू चुक गई, जब से बहुत परेशानी आई घर में, पता नहीं क्यों। 2 साल पहले? क्या 2 साल पहले घर में झाड़ू थी ना, आंगन में रहती हुई, जी तो झाड़ू कोई ले गया उठा के, तब से हमारे जो है 2 बार एक्सीडेंट हो गया, हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और जब से बहुत परेशानी आ रही है घर में, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब जो बताएं अमल उस पर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बरेली से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देंगे आप? जी देखिए भाई, अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल फरमाएं। याद रखें, ये जो आपने कहा कि झाड़ू चोरी हो गई तो इसकी वजह से हमें परेशानियां आ रही हैं, ये तवहुम परस्ती कहते हैं। यानी हमारे जो इस वक्त के नताइज हैं उसको हम किसी लायानी चीज़, किसी बेकार की चीज़ पे डाल दें कि भाई ये जो मुसीबत हम पे आई है ये फ़लाँ चीज़ की वजह से है। जैसा आपने कहा कि झाड़ू की वजह से आपके घर में 2 साल से मुसीबतें हैं, चोरी होने की वजह से। ये गलत फहमियाँ हैं, तवहुम परस्ती इसे कहते हैं। और इस्लाम का एक बड़ा बुनियादी मकसद तवहुम परस्ती से इंसानों को निकालना है। इन सारी चीज़ों को आप जहन से निकाल लें, इसका इंसान की ज़िंदगी में कोई असर नहीं होता। लोग कहते हैं तो दाईं आँख फड़कती है तो ऐसे होता है, बाईं आँख फड़के तो ये होगा, और काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उससे नुकसान होगा, बुराई, फलां का चेहरा सुबह सुबह देख लिया तो फलां होगा। ये सारी चीज़ें तवहुम परस्ती में आती हैं। इनसे एक मुसलमान को, मोमिन को बचना चाहिए। एक बुनियादी अक़ीदा इस्लाम का ये है कि अल्लाह मुअस्सिर हकीकी है, यानी जो भी काम होते हैं इनमें असर पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उसके अलावा नफ़ा नुकसान देने वाली कोई ताकत इस कायनात में, इस दुनिया में नहीं है। तो रहा परेशानियों का मामला, उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह होती है कि हमारे अमाल की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो इस्तिग़फ़ार बड़ा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि, ये अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी कसरत करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते। नहीं तो कम से कम इतना तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पूरे घर के अफराद इसकी उठते बैठते चलते फिरते कसरत करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे, घर में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। ये सूरह आले इमरान है ना, 2 बार करके पढ़ सकते क्या किसी मकसद से? सूरह आले इमरान बड़ा सूरा है ना, 2 बार करके पढ़ सकते, 8 दिन में 1 बार पढ़ सकते क्या? ऐसा पूछने के वास्ते फोन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। जी मुफ्ती साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी देखिए बहन, आपने कहा कि सूरह आले इमरान 8 दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं क्या? पूरा कुरान हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए अता किया गया है।
قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس کے پڑھنے کے لیے الگ سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے، آپ نے کہا کسی جائز مقصد کے لیے یہ سورہ پڑھنا کیسا ہے. دیکھیے پورا قرآن برکت ہے، پورے قرآن میں رحمت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ کاموں کے لیے کچھ خاص آیتیں، کچھ خاص صورتیں یہ بزرگوں سے منقول ہیں، وہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جائز مقاصد کے لیے سورہ یاسین بالکل تیر بہدف ہے، یعنی یہ مجرب عمل ہے. سورہ یاسین شریف روزانہ فجر کے بعد کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تا حصول مراد، جس مراد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے حاصل ہونے تک روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں تو یہ بہت مجرب عمل ہے. بجائے اس کے آپ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے بات کر رہا ہوں میں، حفیظ اللہ. کشمیر سے بات کر رہے ہیں، خیر مقدم ہے، آپ کا پروگرام ہے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میں نے پچھلے ہفتے مولوی صاحب سے بات کیا تہجد کے بارے میں، جو نماز تہجد ہم پڑھتے ہیں. جی مطلب اس کے لیے ہمیں ایک تو مجھے ٹائم، اس نے وہ تو بول دیا تھا ٹائم کتنا ہے، مگر ہمیں ایک اور سوال ہے اس میں کہ ہمیں کتنی رکعت پڑھنی ہے اور کس رکعت میں کون سورے پڑھنے ہیں. اور ہم اور ایک اور سوال اس کے ساتھ کہ ہم عشاء کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں، وطر پڑھے یا نہ پڑھے، وطر تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں. یہ میرا سوال ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ جی بھائی، آپ نے کہا کہ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں اور کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں. دیکھیے تہجد جو روایتوں سے ملتا ہے یہ نفل نماز ہے. 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک 2 رکعت کر کے آپ جتنی سہولت ہو، وقت میسر آئے، آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت اگر وقت ہے تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت، 6، 8، 10، 12، اس طرح 2 رکعت کر کے 2 رکعت سے 12 رکعت تک جتنی سہولت سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اجازت ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں. کوئی اتنا ہی نہیں کہ 6 ہی پڑھنا ہے، 4 ہی پڑھنا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. 2 سے 12 تک جتنی رکعتیں آپ کو آسانی سے پڑھنے میں وقت میسر ہو پڑھ سکتے ہیں. رہا یہ کہ کون سی صورتیں اس میں پڑھی جائے، دیکھیے جیسے عام نمازیں آپ پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی ہیں. تہجد کی نماز بھی، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آپ کو. پڑھنے کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہو، جو آیات آپ کو قرآن شریف کے کسی بھی حصے سے یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی خاص صورت کی تعین نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے وطر کے بارے میں سوال کیا تھا کہ عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھے جاتے ہیں وطر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. جی وطر کے متعلق سے بھی آپ نے کہا کہ یہ وطر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھے یا تہجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ تہجد میں اڑتا ہے، اٹھنے کا معمول ہے اس کا، تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ عشاء اور باقی سنتیں پڑھ لے، وطر کی نماز تہجد میں پڑھے، آخر میں تہجد کی نماز کے بعد آخر میں وطر پڑھے. اگر کسی کو یقین نہ ہو، گمان ہو کہ اٹھ بھی سکتا ہوں نہیں بھی اٹھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ عشاء میں وہ وطر پڑھ لے. اٹھنے کا یقین ہو تو مستحب یہی ہے، باعث ثواب ہے یہ کہ وہ تہجد میں وطر کو پڑھے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجستھان سے عقیلہ بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جیسے میں جلدی اٹھ جاتی ہوں 4 بجے، تو فجر کی نماز سے پہلے یاسین شریف اور جو دعائیں بتا رکھی ہے مجھے وہ سب پڑھ لوں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ایک تو یہ پوچھنا ہے. اور ایک باہر آنگن میں چپل لے کے گھومتے رہتے ہیں بچے اور سب، تو وہاں جانماز عشاء کے نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یہ پوچھنا. اور سب جو یاسین شریف پڑھ رہی ہوں میں، اللہ کا کرم ہے، سارا کام پورا ہوتا جا رہا ہے، سب آدھے ادھورے کام سب بڑھتے جا رہے ہیں، وہ خدا کا کرم ہو رہا ہے. بس یہ پوچھنا ہے مجھے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے راجستھان سے محترمہ. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟
जी, आपने कहा कि फजर से पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास आप उठ जाती हैं जी। और उस वक्त सूरह यासीन शरीफ, दूसरे वज़ाइफ वगैरह पढ़ सकती हैं या नहीं, ये आपका सवाल था। देखिए बहन, आप अगर 4 बजे आपका मामूल है, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ आपको और दिगर नाज़रीन को भी तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता करे। इंतहाई बाबरकत नमाज है तहज्जुद की नमाज। आप अगर फजर से पहले उठ जाती हैं तो पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। आप आसानी से जितनी रकात आप पढ़ सकती हैं उतनी रकातें तहज्जुद की पढ़ लें। उसके बाद आप जो कुरान की तिलावत करना चाहती हैं या वज़ाइफ पढ़ना चाहती हैं वो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद जो दुआ कर सकती हैं, बिलखुसूस दुआओं का कबूलियत का वक्त है, ये इंतहाई मुबारक वक्त है। बाज़ाब्ता रिवायतों में आया है कि इस वक्त की जाने वाली दुआ कबूल होती है। तो जो चाहें आप वज़ाइफ पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, लेकिन पहले तहज्जुद पढ़ें। आपने कहा कि आंगन में चप्पल से चलना फिरना होता है, वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर चप्पल ऐसे हैं कि सिर्फ धूल मिट्टी लगती है, उसे नजासत वगैरह से पाक होते हैं, ऐसी चप्पल अगर आप पहन के लोग चलते फिरते हैं तो वहाँ आप किसी एक जगह ख़ास करके नमाज के लिए ख़ास करके वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं। रास्ता ना हो, आम तौर पे जो चलने फिरने का रास्ता है वो ना हो, बल्कि किसी साइड में किसी मुनासिब जगह पर आप नमाज पढ़ सकती हैं। एहतियात ये करें कि अब इतना कोई गौर नहीं करता कि चप्पल में कोई नजासत लगी है या नहीं। आम तौर पे बाहर जो पहनी जाती है वही चप्पल लोग आंगन में भी पहन के चलते हैं। तो एहतियात करें कि ऐसी जगहों से बच के जहाँ साफ़ जगह हो, बल्कि नमाज के लिए कोई ख़ास जगह कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। शर्त इतनी है कि जिस जगह आप नमाज पढ़ रही हैं वो जगह नजासत से पाक हो, ये शर्त है। आप देख लें जिस जगह आप नमाज पढ़ रही हैं कोई गंदगी तो नहीं है, कोई नजासत तो नहीं है, वो पाक करके उतनी जगह पढ़ लें, काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार से, बेगूसराय से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। साहब, मेरा सवाल ये है कि हमको जो है ना बार बार जब भी सीजन चेंजिंग होती है तो सर्दी हो जाती है और पूरे ये जो कलेजा उसमें टफ जम जाती है, और अभी भी वैसे फिलहाल जमी हुई है, सांस लेने में दिक्कत, दोनों नाक ब्लॉक हो जाती है और कोई शिकायत? सब ब्लॉक हो जाती है, और एक थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या किया जाए इसके लिए? पढ़ने में मन नहीं लगता है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, दोनों सवालों के क्या जवाब आप देना चाहेंगे? जी भाई, आपने कहा सर्दी का मामला है, कुछ इस हवाले से आपको परेशानी है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ा करें, 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें, इसकी पाबंदी करें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। और आपने कहा कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मन लगा कि पढ़ने से मन लगता है। आप खुद नहीं चाहें तो खुद जो ना चाहते हों उस चीज़ का इलाज नहीं है, आप खुद तवज्जो दें, उसकी तरफ शौक़ बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह ताला शौक़ पैदा होगा। उसके लिए आप या अलीमू, अल्लाह का मुबारक नाम है, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 77 मरतबा 77 टाइम्स ये या अलीमू पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपका दिल लग जाए पढ़ने में, तो इंशाअल्लाह ताला शौक़ व ज़ौक़ पैदा होगा, पढ़ाई की तरफ आपका दिल माइल होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं झारखंड ग्रिड से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ ना सर, मैं जब भी कोई आदमी को कुछ भी बोलता है, अच्छा बात बोलता है, तो मेरा दिमाग सनक जाता है, एकदम पूरा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा को नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक,
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جھارکھنڈ سے. جی مفتی صاحب, ان کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی, باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک مومن بلا وجہ غصہ نہ کرے. اگر غصہ آ جائے تو اس کے کم کرنے کی کچھ صورتیں ہیں. وہ یہ ہے, جیسے غصہ آئے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اور پانی پی لیں. پانی اگر قریب میں کہیں میسر ہو تو پانی پی لیں, اور وقت ہو مطلب سہولت کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہوں تو دوسرا عمل یہ ہے کہ وضو کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ 100% اس سے غصہ کم ہو جاتا ہے. غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, وضو کرنے سے وہ غصہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2-3 صورتیں اپنا لیں اور اعوذ باللہ پڑھا کریں. جیسے غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ غصے میں کمی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو, میں تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال ہے, میرے 2 بچے ہیں, میرے کو گورنر. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے 2 بچے ہیں؟ ہاں, میرے شوہر نہیں ہے, چھوڑ کے چلے گئے. میرے کو گورنمنٹ سے جو ملتا ہے میرے کو کچھ پیسے, میرا شوہر چھوڑ کے چلے گیا ہے. جی میرے کو گورنمنٹ نے ایسا, آپ کے 2 بچے ہیں, آپ کے شوہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اس کے علاوہ پھر کیا سوال ہے؟ کچھ ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیسے ملتے ہیں وہ میرے بچوں کے لیے. جی تو آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کیا کریں آپ؟ مجھے گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں, کیا وہ پیسوں سے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر سکتی ہوں کیا؟ یہ معلوم کرنا ہے مولانا صاحب. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ محترمہ کی؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. بہن بالکل, جو آپ کو حکومت کی طرف سے کچھ وظیفہ وغیرہ ملتا ہے تو اس وظیفے کو آپ جب آپ کو مل جائے تو آپ اس کی مالک بن جائیں گی, آپ کی ملکیت اس پہ ثابت ہو جائے گی. تو آپ اپنی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے اس کو صدقہ خیرات بالکل کر سکتی ہیں, جائز ہے, درست ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ عالم بات کر رہا ہوں خودپور سے. جی سوال پوچھیے. جی آدمی عورت میں بہت ہی انبن رہتی ہے, 8 سال ہو گئے. سوال دہرائیں گے اپنا آپ؟ جی عورت سے انبن رہتی ہے 8 سال سے. جی کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک, آدمی لوگوں میں انبن رہتی ہے. ٹھیک, اس کے لیے کچھ وجہ بتائیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیے بھائی, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب بھی بحث شروع ہو جائے تو بحث کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تو یہ انبن ہوگی ہی نہیں, اس کے لیے کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں محسوس کرتا ہو کہ بیوی کی طرف سے ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے, یعنی انبن, لڑائی جھگڑا, بحث وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں, شوہر محسوس کرتا ہے تو شوہر یہ وظیفہ پڑھے, بیوی محسوس کرتی ہے تو بیوی یہ وظیفہ پڑھے, یا دونوں پڑھ سکتے ہیں تو دونوں پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. شوہر پڑھے تو بیوی کا تصور کر کے, بیوی پڑھے تو شوہر کا تصور کر کے روزانہ یا ودودو یہ 10 تسبیحاں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. کوئی ایک مناسب وقت مقرر کر کے اس وقت پہ شوہر پڑھے تو بیوی کا تصور کرے, بیوی پڑھے تو شوہر کا تصور کر کے 10 تسبیحاں یا ودودو پڑھا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ دونوں میں آپس میں محبت قائم ہوگی.
इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और नाज़रीन, इसी जवाब के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। सवाल पूछिए अपना। मेरे दो सवाल है जी। ये कहा तो हमारे बच्चे पोतरे नवासे जी वो लगा अच्छे पढ़ते थे। ये 3-4 महीने से वो लोगों को बराबर पढ़े आते नहीं, दिमाग बराबर नहीं है। इसके बाद से कहते दुआ बोलते हो अच्छा रहेगा। बच्चे अच्छे पढ़ते थे, बच्चे अरबी पढ़ते उर्दू पढ़ते अच्छे इस्लामिक साउथ में लगा हो। उसके बाद से दुआ कहते बहुत अच्छा था। दूसरा क्या लगा था, मेरे हाथ में पूरे खुजली रहते हैं, आम पूरी खुजली रहता, उनसे कहते दुआ बोले तो बताओ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए चेन्नई से। जी मुफ्ती साहब, दोनों सवालों के क्या क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए बहन, बच्चे अगर पढ़ सकते हों तो उनको ये वजीफ़ा बताएं कि या फत्ताहू या अलीमू, या फत्ताहू या अलीमू, ये 70 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करें, वो पानी पिए तो इंशाअल्लाह ताला जहन बिल्कुल कुन जहन हो तो तेज़ हो जाएगा और तालीम में पढ़ाई में दिल लगेगा। दूसरा आपने कहा कि हाथों में खुजली रहती है, तो इसके लिए एक आयत है सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14, फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। ये सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 है। ये आयत आप 3 मरतबा पढ़ के जहाँ भी है सुबह शाम पढ़कर दम कर लिया करें। ये इंशाअल्लाह इंतहाई मुजर्रब अमल है, इसको लगातार करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफायाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला बोल रही हूँ अलीगढ़ से। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल एक तो ये है, ये यही मौलाना साहब थे जो रमजानों में दुआ की थी जी, आखिरी असरे में 2 रोज पहले जी। अगर जो वो दुआ इन्होंने करी थी तो एक रोज और करवा दें। वो दुआ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिस तरह से इन्होंने कहा था दुआ में कि मक्के की तरावी नसीब फरमाए अल्लाह ताला, मक्के की लैलतुल कदर नसीब फरमाए। वो दिन मुझे बहुत याद है, वो आज की सी लगती है दुआ जैसे मौलाना साहब ने मांगी थी। वो एक रोज और दुआ करवा दें जी। और मुझे सुबह सुबह उठती हूँ मैं जैसे वजू के लिए हाथ पे पानी डालती हूँ तो मेरे हाथ नीले पीले से पड़ जाते हैं और हाथों में बहुत दर्द हो जाता है। इसके लिए तो कुछ बताएं मौलाना। ठंडे पानी से वजू करती हैं क्या आप? हाँ जी जी। ठीक। हाथ मुँह पे पानी डाला ही नहीं जाता, ऐसे हो जाते हैं नीले से हाथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी बहन, आप किसी डॉक्टर के पास भी डॉक्टर से रुजू करें, हो सके तो इसका कोई इलाज हो तो वो भी करवाएं। साथ में जब भी आप ऐसा महसूस करें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजिद, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी सूअ मा अजिद। ये इतना आप पढ़कर 3 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में 1-1 मरतबा दरूद पढ़ें। जब भी महसूस हो तो ये पढ़कर अपने हाथों पे दम कर लें, इंशाल्लाह ये शिकायत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से, 12 से। जी सवाल पूछिए अपना। मेरे धंधे में बरकत नहीं होती है जी। और मेरे और कोई सवाल?
हाँ मेरा बच्चा है ना जो जिद बहुत करता है। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र 11 साल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए राजस्थान से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए भाई, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता करें, आपके रिस्क में बरकत अता करें। रोज़ाना नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज की पाबंदी के साथ इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ू 100 मरतबा पढ़ा करें। या लतीफ़ू 100 मरतबा पढ़ा करें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इस अमल को जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी। और कहा कि आपने बच्चा ज़िद करता है, आप बच्चे को अच्छे से समझाएं। जिन मामलात में वो ज़िद करता है समझाएं, तरबियत करें। हो सकता है इंशाल्लाह वो समझ में आ जाए उसको और वो ज़िद करना छोड़ दे। फिर भी ना मानता हो तो ये वजीफ़ा रोज़ाना सूरज के निकलने से पहले पहले, यानी फ़जर का वक्त जो ख़त्म होता है उससे पहले पहले आपको ये अमल करना है। बच्चे के सराहने खड़े होकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है। 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। आप ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे की शरारत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बरेली से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए। जी मुझे ये पूछना था कि फजर के टाइम अलार्म लगाने के बाद भी आँख ना खुले तो कोई दुआ बता दी इसके लिए। जी और कोई सवाल आपका? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बरेली से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? तो इसका आसान हल ये है कि जल्दी सो जाया करें तो ख़ुद ब खुद आँख खुल जाएगी। फिर भी आँख ना खुलती हो, कोई ऐसी दुश्वारी हो, परेशानी हो तो सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ लें। सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह 60 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में 3-3 बार दरूद पढ़ें। पढ़ के ये दुआ करें कि सुबह मेरी आँख खुल जाए फ़लाँ वक्त पे। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आँख ज़रूर खुलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, सरहद से। जी सवाल पूछिए। जी सर मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी खराब है, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन में। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, थोड़ा ज़ोर से आप बोलेंगी? जी 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 मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी खराब रहती है और बहुत डिप्रेशन में है, इसलिए बेटी की तबीयत खराब है, डिप्रेशन में है? जी जी डिप्रेशन में। अब कुछ ही नहीं कुछ कराया हुआ है, कोई कह रहा है किसी चीज पे मांगी, पता नहीं क्या हम। वजह आपने जानने की कोशिश करी? जी नहीं, ये तो हम तो पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं जो जिसको किसी को पूछते हैं मिलाने को वो यही बोलते हैं। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? जी देखिए बहन, आप एक अच्छे किसी माहिर नफ्सियात पे, किसी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें। उसके साथ साथ वजीफ़ा डिप्रेशन के लिए जितना ज़िक्र करेंगे ये इससे बढ़कर कोई दवा कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करने की उन्हें ताकीद करें। सुबह अगर आपको ऐसा शक है किसी का कुछ कराया हुआ है, कोई असर है, कुछ असरात हैं, तो सुबह या मुहयी या मुमीतू 7 मरतबा पढ़ लें। या मुहयी या मुमीतू 7 मरतबा सिर्फ पढ़ना है। उसके अलावा दिन भर उड़ते फिरते चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ की कसरत करें, दरूद पढ़ते रहें। हो सके तो कुछ देर के लिए मदीने की तरफ तवज्जो करके दरूद पढ़ते रहें। यह अमल बार बार दोहराएं। सुबह दोपहर शाम जब भी थोड़ा मौका मिले तन्हाई में बैठ करके मदीने की तरफ तवज्जो करके दरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में अल्लाह चाहे तो
डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस जवाब के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बिजनौर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। तो हमारा सवाल ये है कि हमारे पापा का काम 1 साल तो सही चलता है और 1 साल में बहुत ज्यादा काम टूट जाता है। पापा का काम मतलब 1 साल तो काम सही चलता है और 1 साल में काम बहुत ज्यादा टूट जाता है, कर्ज वगैरह ज्यादा हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी देखिए बहन, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की परेशानी को दूर करें, उनके मसाइल को हल फरमाएं। नमाज़ों की पाबंदी करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। बाज़ाब्ता ये कुरानी नुस्खा है, कोई अगर रिस्क में बरकत चाहता है, औलाद चाहता है तो इस्तग़फ़ार बेहतरीन वजीफ़ा है, बेहतरीन अमल है। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, यह इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला रिस्क में जितनी रुकावटें हैं वो दूर होंगी और बरकत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सर एक सवाल मेरा ये है कि मुझे मतलब जॉब नहीं लग रही है, तो दूसरा सवाल ये है कि मेरी शादी भी नहीं हो रही है सर। आपकी शादी भी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है? जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब इनके सवालों के क्या जवाब देना चाहेंगे? इनकी शादी भी नहीं हो रही है और ये इनकी नौकरी भी नहीं लग रही है। देखिए भाई, दोनों के लिए एक अमल रोज़ाना बग़ैर किसी नागे के पाबंदी से किया करें, अल्लाह चाहे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। रोज़ाना फ़जर के नमाज के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें नौकरी के लिए और शादी के लिए। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दोनों मुरादें अनकरीब पूरी हो जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? वालेकुम सलाम। जी भाई गालिबन कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। आइए नाज़रीन देखते हैं कोई कॉलर अगर हमसे जुड़ गए हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद असलम लखनऊ से बोल रहा हूँ। मोहम्मद असलम साहब लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए असलम साहब। जी 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 मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि हाफ कमीज अगर हम पहने हैं तो उसमें क्या नमाज में मकरूह है क्या, और दूसरा ये कि थोड़ा सा इस टाइम कारोबार में, मेरा कारोबार अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिससे जो है तो थोड़ा सा बहुत दिक्कतें आ रही हूँ। मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं दिक्कत में हूँ तो वो भी बेचारे सब दिक्कत में आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दुआ करिए। और मैं तो अपनी कोई ना कोई मेरी गलती हुई है शायद, जो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, जिसकी वजह से, और मैं नमाज की पाबंदी मैं पूरी कोशिश किए हुए हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं नमाज पाबंदी से पढ़ रहा हूँ, और आप दुआ करिए कि हिदायत दे अल्लाह ताला कि मैं और ज़्यादा नमाज जो है पाबंदी से पढ़ सकूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से कॉल करने के लिए। असलम साहब आपको इस बात का एहसास है कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई है भूले से, जिसकी आप तलाफ़ी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप इनके सवाल का? देखिए भाई, अगर आपके माशी मसाइल में, कारोबार में कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो इसके हल की एक बेहतरीन सूरत ये है कि हमने कल भी अर्ज़ किया था, आप अपने जो भी आपका फ़ायदा होता है उसमें अपने रब को हिस्सेदार बना लें, अल्लाह को हिस्सेदार बना लें। यानी माहाना कुछ पैसे अल्लाह के नाम पर एक फ़िक्स अमाउंट
यानी 5%, आपकी कमाई का 5%, 10%, 20% जितनी आसानी से निकाल सकते हैं आप, दिल बड़ा करके कुछ पैसा निकालें, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में उसको तकसीम करें। आप देखिए इस सदक़े की बरकत ये होगी, आपकी जो भी कारोबार के मसाइल हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएंगी और खूब बरकत होगी इंशाल्लाह। इतनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जिन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे इसको अपना लिया है, इतनी बरकत हुई कि वो हज़ारों में उनका कारोबार था, लाखों में हो गया, लाखों में था तो करोड़ों में हो गया। आज बड़ी ज़रूरत है अपने दीगर भाइयों की मदद करने की, उनके हाथ थामने की बड़ी ज़रूरत है। आप कुछ हिस्सा अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके मुकर्रर कर दें कि मैं अपनी कमाई का 20% हर माह दूंगा, 10% दूंगा। कोई एक आप फिक्स कर लें, उसको पाबंदी के साथ देते जाएं, आप खुद देखेंगे इतनी बरकत होगी, बयान से बाहर है इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब, इनका दूसरा सवाल था कि हाफ आस्तीन की जो शर्ट होती है उसमें क्या नमाज पढ़ सकते हैं किसी मजबूरी के तहत? जी देखिए, हाफ आस्तीन की शर्ट में नमाज पढ़ना कराहत नहीं है, चूँकि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ उर्फ़ से होता है। उर्फ़ आम में क्या चलन है, उसको लोग किस नज़र से देखते हैं। तो एक उसूल याद रखें, जो चीज़ उर्फ़ आम में बुरी समझी जाती है उसको कम नज़र से देखा जाए, तो ऐसी चीज़ें पहन कर आप नमाज पढ़ना भी मकरूह होगा। पहले ये रिवाज नहीं था हाफ आस्तीन की शर्ट पहनना, इसको मायूब समझा जाता था। तो फ़िक़्ह की किताबों में यही मसला लिखा हुआ है, कदीम किताबों में, कि इस तरह पहन के कोहनियाँ खुली रखकर या कलाई वगैरह खुली रखकर नमाज पढ़ना मकरूह है। चूँकि इसका ताल्लुक़ उर्फ़ आम से है, तो अब ये हुक्म होगा हाफ़ टी शर्ट या हाफ़ शर्ट पहनना अब हमारे इस दौर में मायूब नहीं समझा जाता। तो आप हाफ़ शर्ट पहन कर भी नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कर्नाटक से। सवाल पूछिए। हमारे भाई हैं, बहुत गुस्सा करते हैं जी। हाँ, और उनके पढ़ाई में अच्छा पढ़ेंगे। भाई की उम्र क्या है? 14 साल के। आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? हाँ, मेरे से छोटे हैं। ठीक। पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता है? नहीं, पढ़ता है, बट एग्जाम्स में थोड़ा मार्क्स अच्छे आने के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कर्नाटका से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए बहन, आपने कहा कि आपके भाई गुस्सा करते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, तो उनको समझाएं और गुस्सा करने से बचे, अच्छी तरबियत करें। फिर भी उनकी तबीयत नहीं संभलती तो आप या हमीदू अल्लाह का मुबारक नाम है, ये रोज़ाना कोई एक वालिदा या आप रोज़ाना 90 बार पढ़ें, 90 टाइम्स पढ़ कर उन पर दम करें। वो ना हो तो कम से कम पानी पर दम करके वो पानी उनको पिलाएं। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद उनकी तबीयत बहाल होने के लिए और उनकी आदत दूर होने के लिए दुआ करें। और इम्तिहान के लिए, इम्तिहान के दिनों में, यानी 1 महीना पहले, जितने दिन आप मुनासिब समझते हैं, 40 दिन पहले, 50 दिन पहले, रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद या राफ़िऊ 100 मरतबा पढ़ें। या राफ़िऊ, यह अल्लाह का मुबारक नाम है, यह 100 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि अच्छे नंबरात से पास हों, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे नंबरात से पास होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मैं जुल्फ़िकार। जी, मेरे बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई में मन दिल नहीं लगता है। इनका 3 बच्चे हैं मेरे। जी, मेरे बच्चों का दिल नहीं लगता तीनों का पढ़ाई में। एक मेरी बेटी है, उसका नाम उनका है, एक सैयद है,
और एक मेरा जैन है, 3 बच्चे हैं मेरे जी। इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और मेरी बेटी को तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, उनके पढ़ाई दिल लगे इनका। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब जवाबात देंगे और जो जवाबात दें, जो मशवरे आपको दें, उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा, उनका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? जी देखिए भाई, पढ़ाई में दिल ना लगने की एक बड़ी वजह यह है कि तालीम की अहमियत वाज़ेह नहीं होती, तो इसकी वजह से दिल नहीं लगता है। इसकी दूसरी वजह होती है जो हम पढ़ रहे हैं वो जो भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्लियर ना हो, हम क्लास में तवज्जो से ना सुने हो, तो फिर उसको पढ़ने में दिल नहीं लगता। वजह क्या है, आप वजह जाने, उसको दूर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ एक वजीफ़ा अर्ज़ करते हैं, इसको रोज़ाना पढ़ें। आप वालिद हैं, आप ख़ुद इनके लिए दुआ करें, आपकी दुआ खुद इनके लिए बहुत बड़ा अमल है, आप दुआ करें। साथ ही साथ ये वजीफ़ा भी बच्चे अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पढ़कर उनके लिए दुआ करें, पानी पर दम करके पानी पिलाएं। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह पढ़ाई की तरफ उनका दिल माइल होगा इंशाल्लाह। या फत्ताहू या अलीमू, या फत्ताहू या अलीमू, ये 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। सुबह फजर के बाद पढ़ना है, 3-3 मरतबा शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई में दिल लगेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत दिन से मौलाना साहब से एक सवाल पूछना चाहती थी। जी। अपने मक्का शरीफ हज करने जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं ना जी, वो पानी अपन बच्चों को भी पिला सकते हैं, घर में भी छिड़क सकते हैं क्या? एक सवाल तो ये है। आबे ज़मज़म जिसको बोलते हैं वो क्या बच्चों को पिला सकते हैं, यही आपका सवाल है? और जी एक सवाल और है मेरा मौलाना साहब से कि मेरी छोटी बहन की लड़की है, जी। 2 महीने ससुराल गई और वहाँ से उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनकी कोई गलती नहीं है, तलाक ले लिया। और तलाक लेने के बाद वहाँ मोहल्ले में कोई भी लड़का हो, मतलब वो घर पे भी आ जाता है और इतनी परेशान कर रखा। उसके पापा का भी इंतकाल हो गया, तो मतलब रमजानों में उनका भी इंतकाल हो गया, 3रा साल चल रहा है ये जी। और उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। लड़के तो छोटे हैं अभी थोड़े, लड़की वो बड़ी है, 18वें साल में चल रही है। तो उसका निकाह कर दिया था उसकी रजामंदी से, वहाँ से तलाक ले लिया। और अब वो है नहीं, उसकी मनमानी कर रही है, मतलब कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है उसको। माँ कुछ कहती है तो माँ को भी मारती है वो। जी, आपकी भांजी जो है मनमानी कर रही है, उन्होंने तलाक ले ली है। हाँ, और लड़का जनक पता नहीं कौन लड़का है वो लड़का मतलब वहाँ घर पे भी आ जाता है। और मतलब किसी नहीं, मतलब मेरा कहने का क्या बोलूँ आपको, वो सब मियाँ बीवी की तरह रिश्ता बना के उससे रह रही है और चलने किसी की नहीं देती है। और मेरी बहन कुछ कहती है तो उसको भी मारती है वो, और हमारी किसी की नहीं तो मरने की धमकी देती है। और ठीक है, जाती हूँ तो मुझसे तो बोलना चालना ही बंद कर दिया, उन्होंने कह दिया कोई खाला नहीं है हमारी। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? मैं रामगंज मंडी राजस्थान, कोटा के पास में है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, दोनों सवालों के क्या जवाबात देना चाहेंगे कि बच्चों को क्या आबे ज़मज़म पिला सकते हैं? उनका पहला सवाल ये था, और दूसरा सवाल आपने सुना उनकी भांजी के सिलसिले में, क्या जवाबात देना चाहेंगे? जी देखिए, ज़मज़म का पानी इंतहा मुबारक पानी है, ख़ुद भी पी सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। लेकिन हमारा मशवरा ये है, छिड़के ना, बड़ा मुतबर्रक पानी है, बहुत मुश्किलों से हासिल होता है। तो आप घर वगैरह में छिड़कने में कोई हर्ज तो नहीं है, बेहतर है कि ना छिड़कें, पीने के लिए उसको इस्तेमाल करें। ज़मज़म की फजीलत बताई गई कि जिस नीयत से आप पिएंगे ज़मज़म उसके लिए काफ़ी होगा, सेहत के लिए, घरेलू परेशानियां दूर होने के लिए, इल्म के लिए और कुशादा रिज़्क़ के लिए, जिस नीयत से पिएंगे वो नीयत पूरी होगी। जी, तो आप जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब,
آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ان کو دعاؤں کے بارے میں بتایا، وظائف کے بارے میں بتایا، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔